Hello and welcome to a poetry session. Dear students, today I am here with a poem from your Hornbill textbook of English, grade 11, a CBSE course. Now this poem has a title, The Laburnum Top. It is a poem that has been written by Ted Hughes. And my dear friends and students, I shall begin with an introduction to the poem, to the poet. We shall recite the poem. Also, we shall look at the style, the theme, the explanation, the vocabulary, summary, poetic devices, and the rest, that is the question and answers, etc. So dear students, let's quickly have an introduction. Now the book, Hornbill, an NCERT book, grade 11, chapter 3, the poem's title, The Laburnum Top. The poet is Ted Hughes. Now, the poem, The Laburnum Top, is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. नाउ हमारी पोएम का जो टाइटल है द लैबर्नम टॉप. लैबर्नम एक पेड़ है जिस पे पीले रंग के फूल आते हैं. ओके और इनके जो पोइट है जिन्होंने लिखी है ये पोएम, उनका नाम है टेड ह्यूज. ये एक रिश्ता दिखाता है जो कि एक पेड़ और एक छोटी सी चिड़िया गोल्डफिंच के दरमियान है. ये पेड़ येलो कलर का है, बिल्कुल चुपचाप, मतलब साइलेंट एंड डेथ लाइक, जैसे वो जीवित ही नहीं है, जैसे उसमें जान ही नहीं है. लेकिन it is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones. वो पेड़ बिल्कुल चुपचाप था, जैसे जीवित ही नहीं है, लेकिन इस चिड़िया के आने पर वो पेड़ जीवित हो गया, उसमें जान आ गई. ये छोटी सी येलो कलर की चिड़िया उसमें अपना घर बनाती है, मतलब अपना घोंसला बनाती है और अपने छोटे बच्चों को खिलाती है, फीड्स. लेकिन as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. जब वो चिड़िया उस पेड़ पे से उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है, मतलब पेड़ को छोड़ के चली जाती है, दोबारा वो उसी तरह बिल्कुल चुपचाप, जैसे उसमें जान ही नहीं है, ऐसा बन जाता है. यह है हमारी गोल्डफिंच बर्ड. आप देख सकते हैं येलो कलर की छोटी सी बहुत ही प्यारी चिड़िया है. नाउ लेट्स लुक एट द पोएट, द ऑथर और द पोएट. Edward James Hughes was born on the 17th of August 1930 and expired on the 28th of October 1998. He was an English poet, a translator and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. He served as poet laureate from 1984 until his death. एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका पूरा नाम था, ठीक है. इनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ डेथ. ये इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेशन करते थे एंड ज़्यादातर चिल्ड्रंस पोएम्स लिखते थे, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, एनिमल से भी रिलेटेड ये काफ़ी पोएम्स लिखते थे. एंड ये 20th सेंचुरी के अमॉन्गस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज सी द स्टाइल एंड द थीम ऑफ द पोएम. The style, it is a free verse that is free from any limitations of rhyme or regular meter. जब हम पोएम पढ़ेंगे आप देखना कि उसमें कोई राइमिंग नहीं है, ठीक है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस के बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस या लाइन देखते हैं तो लास्ट वर्ड राइम नहीं करता, मतलब कि ये फ्री वर्सेस हैं. That is the style. And the theme, it is a poem of autumn weather about a tree, the laburnum, that was standing still until the arrival of the chirping little goldfinch bird and her young ones. इसको अगर हम इमेजिन करेंगे तो ये एक पेड़ है लैबर्नम, ठीक है. ये गोल्डन शॉवर भी इसे कहते हैं क्योंकि इस पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं. ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है, ठीक है. एज हमने स्टार्टिंग में कहा था, जैसे इसमें जान ही नहीं है, लेकिन ये जीवित हो जाता है एक छोटी सी चिरपिंग, ठीक है.
एक छोटी सी chirruping little goldfinch के bird के आने पर. Now, let's look at the recitation of our poem. The Laburnum Top, or poet Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings and the tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity, mask. Then, with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now let's look at the first stanza. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Okay, in the above lines, ठीक है, यहाँ पर हम explanation देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा के. इसमें क्या है कि जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि जो लेबर्नम ट्री है उसके जो पत्ते थे वो येलो होने लगे थे, सूखने लगे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था. The tree top is still and silent. Still, S-T-I-L-L. जब हम ये वर्ड बोलते हैं still, मतलब जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल चुपचाप, ठीक है, and silent. सितंबर के महीने में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था ये पेड़. ये पेड़ जो था इसके पत्ते पीले होने लगे थे, ठीक है, एंड ये ऐसा लगता था जैसे इसमें जान ही नहीं है. और इस पे जो है जो बीज थे वो सारे सूख कर गिर चुके थे. अब हमने इसमें जो वर्ड यूज किया है येलो, ओके, येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट. येलो symbolizes silence, death and beauty. He describes the whole scene of the tree with this color. अब ये जो येलो कलर है, ठीक है, यहाँ पर हमने लीव्स एंड सनलाइट का कलर येलो यूज किया है. और जो पोइट है वो ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो येलो कलर होता है इसका मतलब साइलेंस होता है, डेथ होती है एंड ब्यूटी होती है. ठीक है, सो 3 words आर डिस्क्राइबिंग इट हियर, साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. नाउ लेट्स देन लुक एट द next stanza here. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. अब एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, ठीक है, इस पेड़ पे जो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था. एंड देन ये सडनली एक चिरअप साउंड बनाती है. अब चिड़ियाँ जो बोलती हैं ना, उनकी जो वो आवाज़ होती है, हम उन्हें चीटरिंग बोलते हैं, ठीक है, चिटरिंग. एंड वो चिड़िया जो थी बहुत अलर्ट थी, बहुत प्रिकॉशियस थी, लाइक अ लीजर्ड. लीजर्ड एक स्पीशी होती है छिपकली की, थोड़ा बड़े साइज में होती है. ओके, सो वो पेड़ की शाखों पे बैठती है और जब वो हिलती है, उसके छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने परों को हिलाते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे वाइब्रेशन होती है जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई है. और जब वो चिड़िया और उसके छोटे बच्चे उस पेड़ पे हिलते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, चिरअप्स करते हैं, उस पेड़ में जान आ जाती है, थ्रिल, ठीक है, मतलब जोश आ जाता है, वो पेड़ खुश हो जाता है. The poet has given 2 opposite scenarios of the tree. हमारे पोइट ने इस लैबर्नम टॉप ट्री के बारे में 2 अलग अलग सीन्स दिखाए हैं, सिनेरियोज, ठीक है, मतलब सीन्स जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं. पहला जो है, द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल. ओके, पहले तो जो पेड़ के बारे में हम बात करते हैं वो बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है, चुपचाप, साइलेंट, डेथ लाइक. एंड जो दूसरा है, गिवन लाइफ एंड शेल्टर टू अ बर्ड एंड हर यंग वंस.
जो दूसरा सीन है वो ये होता है कि इस पेड़ में जान आ जाती है और वो एक चिड़िया को और उसके छोटे बच्चे को एक घर देता है रहने के लिए, मतलब चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड स्टैंजा. नाउ एंड वन थिंग मोर, ऑलवेज आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बैठता है, तभी हमें पोएम में मजा आता है. ओके, सो स्टैंजा 3. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity. Now, this is the stanza 3 we have here. Let's see इसका explanation क्या है. The engine of her family. जो bird होती है गोल्ड फिंच, वो अपनी फैमिली की इंजन होती है, क्योंकि वो उन्हें फीड करती है, वो उनके लिए खाना प्रोवाइड करती है ना, सब कुछ वो ही करती है उनके लिए. वो येलो कलर की होती है और उसका जो फेस होता है उस पर डार्क कलर के स्ट्राइप्स होते हैं. ओके, सो देन विद ईयर डेलिकेट विसल चीयरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. सो फाइनली जो एक गोल्डफिंच बर्ड होती है वो एक ब्रांच के एंड पे जाती है, एक स्वीट सी चिरपिंग साउंड बनाती है, ठीक है, and then flies away towards the infinite sky, and then वो दूर उड़ जाती है. और उसके बाद क्या होता है, जो लैबनम ट्री होता है वो दोबारा उसी तरह रह जाता है, अकेला चुपचाप खड़ा हुआ, जैसे उसमें जान ही नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द वोकैबुलरी चेक. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए हैं आप उनका मतलब देखें, एंड जब आप उनका मतलब जान लोगे तो उसके बाद पोएम को समझना बहुत आसान होगा आपके लिए. सो लेट्स लुक एट द वोकैबुलरीज. लैबरनम, अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. लैबरनम जो होता है, ठीक है, वो एक पेड़ होता है, इंडिया में भी होता है, हम उसे इंडियन लैबरनम भी कह सकते हैं. ओके, एंड हाइट में कम होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उस पर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं. गोल्डफिंच इज स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, येलो कलर की होती हैं. ट्विचिंग, सडन जर्क मूवमेंट. जर्क मतलब जो झटके लगते हैं, जैसे झटका. चिरअप, अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड्स. ठीक है, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना, लाइक बहुत बारीक बारीक आवाज़ होती है जो निकालती है, उसको हम चिरअप कहते हैं. स्टार्टलमेंट, अ फीलिंग और शोइंग सडन शॉक. सडनली कुछ हो जाता है, हम एकदम डर से जाते हैं, ठीक है, एक सडन शॉक की तरह, दैट इज स्टार्टलमेंट. एब्रप्ट, रैपिड मतलब एकदम से, जल्दी. चीरिंग्स, टू मेक अ चैटरिंग साउंड. ट्रेमर ऑफ विंग्स, इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स. विंग्स होते हैं जो पंख होते हैं ना, तो जो चिड़ियाँ, जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनके पर हिलते ही रहते हैं. आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपको घोंसले में चिड़िया के बच्चे दिखें तो वो पर हिलाते रहते हैं अपने. ट्रिलिंग्स, टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड. ट्रम्बल्स, टू शेक, ठीक है, कांपना या हिलना. थ्रिल्स, अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, जब बहुत खुशी होती है. सो वो पेड़ इतना खुश हो गया था जब वो चिड़िया उस पर रुकने आई, उस पर रहने आई अपने बच्चों के साथ. फ्लर्ट्स आउट, लीड ऑन टू, जब वो बाहर एक ब्रांच की तरफ बढ़ती है. स्टोक्स, टू ऐड फ्यूएल टू द इंजन. ईयरी, वियर्ड एंड स्ट्रेंज, अजीब. विसल, whistle, cheer up, that's gentle whisper like the chirping of the bird. Subsides, diminishes, that is like finish, that is how in the end after the bird left the laburnum tree it subsides again to its earlier condition, you know, just standing still and death-like. Next, let's look at the summary of this poem. Okay. The poem starts with a description of the laburnum tree whose top was still and silent. Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. It was the daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like. The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird.
She came to feed her younger ones who are on the thickness of the branch. The tree is her shelter. She arrives at the end of the branch with a chirping sound. She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. As soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. The bat-like tree becomes alive and it trembles and shakes. Okay? So, हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो है ये पेड़ ऐसे खड़ा रहता है बिल्कुल चुपचाप एंड देन ये चिड़िया आती है और जब ये चिड़िया आती है इसकी चिरपिंग साउंड से और वाइब्रेशन से छोटे बच्चों के परों जो पंख होते हैं उनकी वाइब्रेशन से इस पेड़ में जान आ जाती है और ये खुशी में बहुत हिलता है, थ्रिल हो जाता है। उन्हें खाना खिलाने के बाद वो ब्रांच की दूसरी साइड पे जाती है और उसका जो डार्क कलर्ड फेस था, ठीक है, एंड येलो बॉडी, वो बेयरली विजिबल था, बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद वो दूर आसमान में उड़ गई और वो पेड़ दोबारा वैसे ही रह गया जैसे उसमें जान ही नहीं है। ओके, दैट वाज द समरी। नाउ लेट्स लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस used in this poem. The laburnum top is silent, quite still. This is personification. September sunlight, alliteration, also called sibilance because it's a repetition of soft sounds. Chirrup, onomatopoeia because it's a sound word. Sleek as a lizard, simile because it's a comparison between two dissimilar things. And alert and abrupt, this is assonance. Machine, this is a metaphor because the nest is compared to a machine. She drinks, this is onomatopoeia. Trilling, another onomatopoeia because these are sound words. She stokes, that's alliteration or also called sibilance. And then engine is a metaphor. So students, those were the poetic devices used. Now let's look at the question and answer session. And in this section we have a first part as find out. So, what laburnum is called in your language? It is called amalthas or Indian laburnum, also called golden shower. So, हिंदी में हम इसे अमलतास कहते हैं। ये पेड़ है, इस पे येलो कलर के फूल होते हैं, लटकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स डाउनफॉल, एंड इसके जो फ्रूट्स होते हैं लंबी लंबी फलियां होती हैं और उसके अंदर बीज होते हैं और वो बीज बहुत जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। आई एम श्योर अमलतास सुनकर तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये कौन सा पेड़ होता है। ऑल्सो इट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ केरला एंड ऑल्सो कॉल्ड द ईयर एज कनिकोना। केरला स्टेट का फ्लावर है ये, ओके, स्टेट फ्लावर वहाँ का नेशनल फ्लावर, और इसको वहाँ की भाषा में कनिकोना कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है कैसिया फिस्टुला। ऑल्सो इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड। नाउ second question, which local bird is like the goldfinch? According to me, the Indian Lutino ringneck has similarity to the goldfinch bird. जो हमारी लोकल ब्रीड में इंडियन लुटिनो रिंगनेक है वो गोल्डफिंच से काफ़ी सिमिलर लगती है। जो सेकेंड पार्ट है वो है थिंक इट आउट। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? पोएम की स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या वो चीज़ है जो हमने नोटिस किया जो सिमिलर हो सकती है? वो ये है, एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम द laburnum tree was standing still and silent just like death like. Second question, to what is the bird's movement compared? What is the basis of the comparison? Now जो बर्ड का मूवमेंट था हमने उसे किस चीज से कंपेयर किया था? एज अ सिमिली, हमने पोइटिक डिवाइस यूज की है सिमिली, सो वो कहाँ से कंपेयर किया था? The goldfinch's movement is compared to that of the lizard because she was abrupt, sleek, and alert. The same movements were observed when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch to feed her young ones. ठीक है, सो जो उसका मूवमेंट था, जिस तरह से वो ब्रांचेस पे चल रही थी अपने छोटे बच्चों को लेकर, हमने जो कंपैरिजन किया है, इट इज स्लीक एंड अलर्ट एज अ लिजर्ड. Why is the image of the engine evoked by the poet? अब देखें, हमने जो वर्ड यूज किया था engine as a metaphor device, वो क्यों किया था? As the engine is the source to run the machine,
The bird is compared to the engine as she is the feeder of her family. As a machine cannot work without an engine, her family can't last without her. अब जो मशीन होती है उसके अंदर एक इंजन होता है, तभी तो मशीन चलती है. सो इसी तरह जो बर्ड थी हमारी गोल्डफिंच, वो अपनी फैमिली की इंजन थी, क्योंकि वो उनको खाना खिलाती थी, उनका ख्याल रखती थी. जैसे एक मशीन नहीं चलेगी बिना इंजन के, उसी तरह उसकी फैमिली जो है, वो छोटे छोटे बच्चे, वो उसके बिना नहीं रह पाएंगे. Isn't it? नेक्स्ट है, what do you like most about the poem? आपको पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा? I liked the comparison of the state of the tree before and after the goldfinch bird arrives and it makes the dead tree like alive. अब देखें, सबसे अच्छी बात इस पोएम में ये है कि जो कंपैरिजन हम देखते हैं कि चिड़िया जो है उसके आने से पहले वो पेड़ कितना चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट, जैसे उसमें जान नहीं है, ऐसे होता है. और जब चिड़िया आती है वो खुशी से, बिल्कुल उसमें जोश आ जाता है, वो खुश हो जाता है, जैसे उसमें वो जीवित हो गया है ना. सो ये बहुत एक प्यारी सी बात है एक पेड़ के बारे में. इट्स अबाउट नेचर एक्चुअली. ऑल्सो व्हाट इज द फ्रेज her barred face identity mask? ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? So the phrase her barred face identity mask means that the bird's face become her identity and symbol of recognition. उसका जो चेहरा था उस पे स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, एंड बॉडी उसकी येलो कलर की होती है, सो उससे उसकी एक पहचान बनती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द Q&A सेशन, दिस सेक्शन इट इज नोट डाउन. मतलब कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, इनमें से हमें वर्ड्स निकालने हैं. सो सबसे पहले द साउंड वर्ड्स, जैसे हमने पोएटिक डिवाइस में लिस्ट किया था ओनोमेटोपियाज, दैट इज ट्विचिंग, चिरअप, चिडरिंग्स, ट्रिलिंग्स, विस्परिंग. ये हैं हमारे साउंड वर्ड्स. फिर द मूवमेंट वर्ड्स, किस तरह से वो चलती थी, कैसे डिस्क्राइब किया है, एंड कैसा पेड़ पहले था एंड कैसे बाद में होता है. सो कम्स, एंटर्स, startups, flirts out, launches away, tremble, subside. ये हैं हमारे movement words. And then जो the dominant color in the poem, सबसे ज़्यादा कौन सा मेन कलर यूज़ किया है, ये तो अब आप भी जानते हैं. yes, येलो कलर यूज़ किया गया है. Now list the following. अब इसमें क्या करना है हमें कि ये जो words हैं, ठीक है, for example the first one, words which describe sleek, alert, abrupt. ये जो वर्ड्स हैं ये क्या को डिस्क्राइब करते हैं पोएम में? ये है lizard for sleek, machine, alert, abrupt, suddenness. Okay? Now, second वाला है words with the sound cha as in chart and tr as in trembles, जो पोएम में यूज किए गए हैं वो हैं gold, finch, branch, chidrings, chirrup, trillings, twitching, tremors. Third, other sounds that occur frequently in the poem. और कौन सी sounds यूज होती हैं? So जो ing sound है, ठीक है, ing जो 3 words alphabets यूज होते हैं words में, जैसे कि twitching, chitterings, winks, trillings, whisperings, ये other sounds हैं जो हम poem में continuously यूज करते हैं. So overall students, the laburnum tree, this is a story about an amalthus पेड़, जिसे हम golden shower भी कहते हैं, या इंडियन laburnum. आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, कितने प्यारे इसके फ्लावर्स हैं. और ये पेड़ ऐसे मतलब बिल्कुल चुपचाप खड़ा था until हमारी goldfinch bird आती है, इसमें जान डालती है और फिर चली जाती है. So dear students, please study the poem again. Question answers भी are provided for you. Enjoy. Feel the poem. It's really a beautiful thing about nature. I hope you do enjoy it, and if it's interesting, I shall definitely get some more poems for you, and I just hope they help you in your study. So all the very best throughout your grade 11. Take care of yourselves, stay home, and have a nice day.